ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಮಾರ್ಪಾಟರು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರೂ ನಮಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು. ಈ ದಿವಸ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು, ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡೋಣ. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ನಾ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ನಾ ಬಯಸುವೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಗೆ ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಗೆ ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ನಾ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ನಾ ಬಯಸುವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಾಜಾದಿರಾಜನು, ಕರ್ತಾದಿಕರ್ತನು, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸು, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಇಡೀ ಲೋಕವು ಸ್ವಾಮಿ ಹಲ್ಲಕೊಲ್ಲಲಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ದೂರ ಮಾಡು. ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜನರು ತಾವು ಕೂಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ಈ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನರಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಹಳ ನಾವು ದಣಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದು ಆಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಸ ನಾವು ಸಭೆಯಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಭಿಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಡೆಸು.
ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ನೀಡಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸು. ಈ ದಿವಸದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲದಿಂದವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಸಂಧಿ 28ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. ಮತ್ತಿ 11:28-30. ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು, ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗವು ಮೃದುವಾದದ್ದು, ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರವಾದದ್ದು ಅಂದನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಯಿಸಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಓದುವ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾರೋಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನೌತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು 3ನೇ ಒಂದು ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಬಾವುಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಣುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. आज हम देखने वाले हैं कि ये पैंडेमिक जो स्थिति है हमारे जीवन के अंदर किस तरह से थकान को लेकर आई है. आज हर एक जन जो घर में रहते समय पर आज शारीरिक रूप से थके हुए हैं. हो सकता है कि हम घर में रहकर भी थक गए हैं, आइसोलेशन में होकर थक गए हैं, बहुत सारी चीज़ों से लेकर हम बोर हो चुके हैं. मानसिक रूप से कई बातों को सुनकर, वही बातें सुनकर, व्हाट्सएप में देख कर या फिर टीवियों में न्यूज़ सुनकर हम थक चुके हैं. भावनाओं की रूप से इमोशनली हम में से बहुत सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि हर एक दिन कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु को हम सुनते आ रहे हैं. जिसके वजह से हमारे अंदर इमोशनली भी हम कई तरह से थक चुके हैं. In other words, we can say we are very much tired. हम सभी लोग जो है थक चुके हैं. We are tired of this pandemic. ये पूरी महा बीमारी से जो है, महारोग से जो है हम सभी लोग थक चुके हैं. What do we need? हम सभी को जो है ज़रूरत है कि रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है. हम ये कह सकते हैं कि एक आराम की ज़रूरत है. बट हाउ टू गेट इट दिस वन? इस पैंडेमिक स्थिति के अंदर इस थकान को दूर कर किस तरह से किया जाए? हमारा परमेश्वर जो है ये कहता है, भजन संहिता उसका 46वां अध्याय 10वां वचन ये कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड.
आप शांत रहे और जानिए या फिर देखिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। सच में अगर हम कहें, आज हम सभी लोगों को ये ज़रूरत है कि हम वी ऑल शुड बिकम बी स्टिल या फिर शांत हो जाए। किसके सामने? इस पैंडेमिक के सामने नहीं, हमारी परिस्थितियों से जूझने के लिए नहीं, बजाय आज की परमेश्वर के सम्मुख में आकर हम शांत हो जाए और ये जाने कि वो परमेश्वर है। और ये परमेश्वर के शब्द को जो है अगर हम कहेंगे, इट डज नॉट हैव एनी अदर वर्ड और एनी अदर सिनोनिम। इंग्लिश में हम कहते हैं एक शब्द का दूसरा शब्द, कई अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई और शब्द नहीं है, क्योंकि ही इज द अल्टीमेटम मतलब यही सब कुछ है, उसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ही इज अल्फा, ही इज ओमेगा, उनके द्वारा उत्पन्न हुई, उनके द्वारा चल रही है, उनके द्वारा ही अंत होगा। There are many names have been given to this God. He is a omnipotent, यानी कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is omnipresent मतलब एक ही समय पर सभी जगह पर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। He is omniscient, यानी कि ये परमेश्वर सब कुछ जानता है। So when God knows everything, so today I just want to say that Lord, I want to be still before you. मैं आपके सामने आकर शांत रहना चाहता हूँ या फिर रिलैक्स होना चाहता हूँ। I want to get relaxed. रिलैक्स का मतलब अगर हम देखते हैं डिक्शनरी में शब्द और एक बात आती है, गेटिंग अनस्ट्रेन्ड, यानी कि जो कुछ हमारे जीवन के अंदर जो हमारे लिए स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज़ें हैं, स्ट्रेस पैदा करने वाली बातें हैं, इन सभी बातों से जो है हम छुटकारा पाकर हम अपने आप को खोल दें। इन अदर वर्ड्स दे आर टेलिंग लूजन अप, जस्ट गेट एवरीथिंग, गेटिंग, पूरी चीज़ों को खोल दे, इस तरह से कह सकते हैं। सो ये कहेंगे कि नाउ गेटिंग द रिलैक्स्ड या फिर रिलैक्स होना है इस परमेश्वर के सामने। कैसा रिलैक्स होना है? कई बातों को लेकर हम सोचते बैठे हैं या फिर कुछ चीज़ें बदल नहीं पा रही हैं, कुछ चीज़ें परिस्थिति जो है सही तरह से नहीं हो पा रही है, बट स्टिल हाउ आई नीड टू डू, क्या करूँ मैं? इस तरह से हमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे डैड जो है, हमारे पापा बहुत ही सिस्टमैटिक थे। घर के अंदर जो है चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने नहीं देते, जो चीज़ें जहाँ पर रखना है वहीं पर रखना होता है। और इस तरह की स्थिति के अंदर अगर कोई भी चीज़ें यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जाती तो डैड, पिताजी, अप्पा जो है बहुत ही चिल्लाते थे। और इसीलिए हम कई बार डर के मारे हर एक चीज़ें उसी जगह पर, वही जो चीज़ें यहाँ पर रखना है उस चीज़ों को हम रखते थे। इतना होने के बावजूद भी जो है क्या होता था पता है, अगेन थोड़ा इधर उधर अवस्थ यहाँ पर रख देने के बाद चीज़ें, फिर से डैड आकर उन चीज़ों को जहाँ पर रखना है वहाँ पर रखते। और बाद में कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें होती तो जब हम उनसे पूछते ये कहाँ है, तो डैड उसे निकाल कर हमें दे देते। और इसीलिए हम कई बार सोचते थे कि ठीक है, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं हमारा डैड करेगा, हमारे पिताजी जो है करेगा। इस तरह से हम रिलैक्स हो जाते थे। आज भी कुछ परिस्थिति इसी तरह से है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप से करना चाहते हैं। वी आर ऑल ट्राइंग आवर लेवल, बस हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने के हम सारे प्रयासों को कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो है कुछ चीज़ें रह जाती है, तो आज हमें क्या करना है पता है? वी हैव टू बी रिलैक्स होना है इस परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर जो है इन सारी परिस्थितियों को वापस से बदल देगा या फिर वापस से चेंज कर देगा। कुछ चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ये बात जानकर उनके पास रिलैक्स होना है दैट गॉड इज इन कंट्रोल, कि परमेश्वर जो है सब कुछ अपने कंट्रोल में रखकर चलाता है। सो टुडे व्हाट इज द नीड इज दिस, बी स्टिल मीन्स दैट रिलैक्स बिफोर गॉड। इस परमेश्वर के सामने आकर रिलैक्स हो जाए। हम सभी लोग जो है घर से काम से जब थक कर आते हैं, सोफा के ऊपर बैठकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अपने मन को जो है, अपने दिमाग को जो है शांत रखना चाहते हैं। उस शांतता के 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही जो है हमारे लिए एक नया एनर्जी अंदर आ जाता है। हाउ इट कम्स? बिकॉज यू आर रिलैक्सिंग योर माइंड। अपने माइंड को, अपनी चीज़ों को, सब चीज़ों से हटाकर फोकस कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टुडे। आज परमेश्वर यही बात चाहता है कि हम रिलैक्स हो जाए। सेकेंडली, दूसरी तरह से जो है आज इस पैंडेमिक की स्थिति को देखकर और एक चीज़ें परमेश्वर हमें याद दिलाता है, वो ये कह रहा है, नॉट ओनली जस्ट गेटिंग रिलैक्स बट ऑल्सो टेक रेस्ट। आप जो है थोड़ा आराम लीजिए, किन बातों, या फिर विश्राम लीजिए, इस तरह कहेंगे। इन बी स्टिल, इसका मतलब होता है नॉट ओनली जस्ट गेटिंग रिलैक्स बिफोर गॉड, ऑल्सो टेकिंग रेस्ट इन गॉड। परमेश्वर के सन्निधान में, परमेश्वर के उपस्थिति में आज हमें आराम या विश्राम लेना है। रेस्ट अगर हम कहेंगे
आराम या फिर विश्राम कहेंगे इसके बारे में, ये बहुत ही प्रामुख्य है। मनुष्य बिना विश्राम के, बिना आराम के वो आप जिंदा नहीं रह सकता है। कंटिन्यूअस ही कैनॉट वर्क। 24 आवर्स के अंदर हमें 8 घंटे, 7 से 8 घंटे जो है हमें आराम चाहिए, नींद चाहिए, जिसके बिना हमारा लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो सकता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर सभी कामों को जो है करने के बाद there is a need for the rest. That is why when God created this whole world in the 6 days, on the 7th day he rested. परमेश्वर ने जो है इन 6 दिनों के अंदर काम करने के बाद, पूरी सृष्टि को बनाने के बाद 7वां दिन जो है उन्होंने विश्राम किया और कहा कि ये पवित्र दिन कहलाएगा। और आज हम सभी लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उनके जीवन में जो है रेस्ट नहीं है, आराम नहीं मिल पाती है। इट्स ए गॉड्स डिजाइन्ड ऑर्डर, परमेश्वर की ओर से रचा गया एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर को हमें फॉलो ही करना है। आज मैं पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक सेमिनार अटेंड करते समय इस बात को सुना कि आज पैंडेमिक की परिस्थिति इस तरह से आने का एक कारण भी ये है कि आज लोग सैबथ डे को, यानी कि परमेश्वर के दिन को, विश्राम का दिन, पवित्र दिन ना मनाते हुए कई लोग वो दिन काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीति से अपने आप को बिजी रखते हैं। सुबह के सर्विस, 1 घंटे सर्विस अटेंड करके पूरा दिन जो है वो अपने आप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं। बट गॉड डिजाइन दिस डे एज अ डे ऑफ रेस्ट सो दैट यू विल बी रिन्यूड बाय गॉड। परमेश्वर की ओर से हम रिन्यू पाना है। कई बार हम इस चीजों को भूल गए हैं। बिब्लिकली इट्स वेरी क्लियर that on the 7th day you need to keep the day as a holy and Sabbath day. उस दिन पवित्र दिन रख करके आपको चलाना है। और अगर हम देखते हैं और आगे बाइबल के अंदर ये भी पाते हैं कि हर 7वां साल, 7th year should be a sabbatical year, जहाँ पर खेतों को, मजदूरों को, सभी चीजों को आराम देना है। और एक चीज हम देखते हैं 7 into 7 49, मतलब 49 ईयर्स होने के बाद 50वां साल जो है जुबली ईयर मनाया जाता है। वो साल में जो है जिस किसी का खेत अगर किसी के पास गिरवी है तो उसे दे देना है। जो कोई भी अगर गुलामी में है तो वो गुलाम जो है उसे छोड़कर जाए, उनको रिलीज करना है। और कुछ चीजें जो है अगर आप पकड़ कर रखे हैं उन सारी कर्जों को, सब चीजों को माफ करना है। जुबली ईयर इज अ रेस्टोरेशन ईयर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज अ टाइम टू गेट रेस्ट एंड बी रेस्टोर्ड, जहां पर हम आराम करना है और उसके साथ साथ में जो है फिर से चीजों को नए रीति से हमें पाकर चलना है, करे कह सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस परिस्थिति को, गए साल से हमारा माइंड, हमारे दिमाग, हमारे परिवार, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है पैंडेमिक से पीड़ित हो चुके हैं। और आज हमें क्या चाहिए? वी नीड सम रेस्ट फ्रॉम दिस थिंग। इन सारी बातों से मुझे आराम की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है। आज कॉन्स्टेंटली हम काम, घर से काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन लोग एवरी डे देयर, नाइट एंड डे देयर वर्किंग, देयर गेटिंग बर्डन। बहुत सारे बोझ में हम लोग दबे हुए हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कई तरह के एक्सर्शन, काम की वजह से एक्सर्शन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और हम घर में रह करके भी परिवार के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, स्ट्रेस क्यों आ रही है पता है? कहीं ना कहीं जो है आज मैं इस सारी चीजों को लेकर एक भार के रूप में, एक बर्डन के रूप में लेकर मैं जी रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम करते हैं ना, उस कामों को हम परफेक्ट करने की वजह से भी कई बार हमारे जीवन के अंदर ये दबाव आ जाती है। परफेक्शनिस्ट, वी वांट टू डू एवरीथिंग परफेक्ट, इसी तरह से परफेक्ट होना है। बट लेट मी जस्ट टेल यू, इस पैंडेमिक परिस्थिति के अंदर जीते समय हम परफेक्ट चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन सारी स्थिति के अंदर ये बात ध्यान में रखकर चलना है that today you and I need to be take and rest। मुझे और जो है आपको आराम की जरूरत है। Matthew chapter 11 verse 28, from where I can find this stress, और स्ट्रेस से, चीजों से जो है आराम कैसे मिलेगी? मत्ती इसका 11वां अध्याय 28वें वचन के अंदर एक यीशु मसीह हम सभी को पुकार कर कह रहा है, जो वचन हमने आज पढ़ा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा कहकर। यानी कि यीशु मसीह आज कह रहा है अगर हमें विश्रांति की जरूरत है इन पैंडेमिक परिस्थिति के अंदर भी, हम इस स्थिति के अंदर रहते समय हम आराम नहीं ले सकते, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आएंगे हम आराम लेंगे। कैसा? वो कहता है कि तुम मेरे जुओं को तुम अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं बहुत ही नम्र और दीन हूँ। इस तरह से वचन कहता है, टेक माई योक एंड लर्न फ्रॉम मी, आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट। अब एक जुआ जो होता है, योक जो होता है, क्या है पता है?
जब हल जोतते समय पर दो बैलों को ऊपर जो है जुआ, वो लकड़ी जो है उसके उनके गले के ऊपर रखा जाता है और दोनों को साथ में दौड़ना रहता है ताकि वो भार एक साथ लेकर पीछे हल जोतते हुए जाना है, काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है योक, वो दोनों के बराबर इक्वल रख करके चलता है। तो आज यीशु मसीह क्या कह रहा है पता है, वो योक जो भार तुमने उठाया है अकेले मत उठाओ बल्कि उसे निकाल दो, तुम मेरे योक को ले लो, मेरे जुओं को ले लो, तुम जो है इसके द्वारा तुम आराम पाओगे। क्यों ये कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आज मुझे और तुम्हें जो है एक नए रीति से आराम देना चाहता है। वो ये कहता है कि तुम मेरे साथ इस चीज को, भार को, जो योग को उठाओ, देन यू विल डू ए वेरी एक्सेलेंट थिंग। कैसे? क्योंकि उनके स्ट्रेंथ से मेरे स्ट्रेंथ में जो है, सॉरी, उनके बाजू से मेरे ऊपर जो है एक स्ट्रेंथ मिलती है। वो ज्यादा स्ट्रेंथ ऑलरेडी ले चुके हैं और वो मैं जब बलहीन होता हूं मुझे वो स्ट्रेंथ देता है। सो टुडे आई वांट टू वॉक विद दिस जीसस, टेकिंग दैट योक अपॉन मी, शेयरिंग हिज योक, और उसके द्वारा क्या होगा, मुझे सहायता मिलेगी। और इसी बात को पौलुस अपने जीवन में अनुभव करते हुए ये कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 10वें वचन में, मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा बल तुम्हारे बलहीनता में प्रकट होती है। मतलब जब हम कमजोर होते हैं उस समय परमेश्वर का बल मेरे अंदर प्रकट होता है। तो आज मैं अपने जीवन में इस परिस्थिति में जीते समय बहुत से दबा हुआ हूँ, थका हुआ है, आराम चाहिए, कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आइए और उस यीशु मसीह के छुओं के सामने उसको लेकर उनके द्वारा अपने स्ट्रेंथ को आप पाइए। प्रियो, एक दिन जो है एक बाप अपने बेटी को खेलते हुए देख रहा था। क्या खेल रही थी बेटी जो है रेत, जो सैंड, हाँ रेत, हम समुद्री किनारे जो रेत होती है उससे खेल रही थी, देख रही थी। और वो बकेट को लेकर, काफी गीला था, बकेट से उससे खेल रही थी, रेत काफी गीला था। तो उन्होंने क्या किया, उस बकेट के अंदर सब रेत को भर दिया। भरने के बाद जो है उठाने की प्रयास कर रहे थे, उठाकर थोड़ा उस तरफ दूर लेके जाकर और एक पाइल, वो मतलब एक माउंटेन बनाना चाहते थे, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे थे। डैडी देखकर मुस्कुराए और उसके बाद बेटी ने कहा, डैडी प्लीज हेल्प करो, मेरी ताकत मुझे बस नहीं होती है इसे उठाने के लिए, तुम मुझे हेल्प करो। डैडी आकर वो बकेट को उठाकर उनको वहाँ पर रख दिया और वहाँ पर डालकर वो बेटी जो है खेलने लगी। प्रिय लोगों, आज इस दृष्टांत के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कई बार हम अपने जीवन के अंदर रहते समय बकेट भरकर हम रखे हैं, सैंड को उठा नहीं पा रहे हैं, कई कामों को हम करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या, वो डैड जो परमेश्वर ऊपर है वो देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो आज सिर्फ इतना ही चाहता है कि हम कहें कि डैड मेरी तक ताकत काफ़ी नहीं है, आप मुझे मदद करें। और वो डैड जो है, वो पिता जो है मुझे आज आकर यहाँ पर मदद करने वाला है। सो व्हेन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, गॉड डज फॉर मी। जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तब परमेश्वर मुझे करेगा। इसीलिए आज हम आराम को पाए, कहाँ पर? परमेश्वर के शक्ति के अंदर, परमेश्वर के सामर्थ के अंदर, यीशु मसीह के जुओ यानी कि योग के अंदर हम आइए, उसके अंदर आराम को पाए। द थर्ड थिंग इज, तीसरी बातें जो है वो ये है, इस पैंडेमिक स्थिति के अंदर you and I need to rejuvenate our faith और hope और energy। आज मैं और आप जो है अपने ताकत को, अपने विश्वास को, अपनी आशा को फिर से तरोताजा करना है, उसको नया करना है। rejuvenate ये शब्द जो है बहुत ही अच्छा शब्द है। इसमें 3 शब्द है। इसमें एक जो है जुवे का मतलब होता है यूथ, और री मतलब होता है अगेन, उसके आगे जुड़ा हुआ नेट मतलब टू डू और टू मेक इट। इसका मतलब होता है मेकिंग यंग अगेन। मतलब ये है रेजुविनेट, मतलब कि जो कुछ भी आप थे उसको वापस से जवान बनाना है, वापस से नया करना है, इस तरह से कह सकते हैं। कैसे होगा? यशायाह उसका 40वां अध्याय 31वां वचन हम देखते हैं, Those who trust in the Lord, they shall renew their strength। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो नई बल प्राप्त करेंगे। इसके बारे में हमने कई संदेशों को सुना है, वचनों को सुना है, लेकिन आज मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ताकत, हमारी विश्वास, हमारे आशाएं, हमारे सब कुछ जो है फिर से रेजुविनेट करना है, वापस से उसको तरोताजगी करना है, शारीरिक रूप से थकान को दूर करना है। आइए उसको हम ये करें, उसको रेजुविनेट करें। हमारे कामों को करते करते हम थक चुके हैं, एक नए सिरे से हम ढूंढें।
और हो सकता है कि फ्यूचर के भविष्य के बारे में हमें अंधकार दिखाई दे रहे हैं, गॉड इज गोइंग टू मेक अ वे। परमेश्वर जो है एक नए सिरे से रास्ता बना रहा है। एक परमेश्वर का सेवक जोहान वॉल्फगैंग करके व्यक्ति है, वो इस तरह से कहते हैं, वी मस्ट ऑलवेज चेंज, वी मस्ट ऑलवेज चेंज, वी मस्ट ऑलवेज रिन्यू, वी मस्ट ऑलवेज rejuvenate ourselves, otherwise we harden। वो ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें बदलना है, चीज़ों को नए सिरे से करना है, नई ताजगी को हमारे अंदर लाना है, नहीं तो हम उसी जगह पर पत्थर जैसे बन जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और सच में आज ज़रूरी है कि इन दिनों के अंदर हम सभी लोग जो है अपने आप को चेंज करें, रेजुविनेट करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा, नई नई बातों के द्वारा, उस यीशु मसीह के पास आने के द्वारा। क्यों पता है? परमेश्वर ये कह रहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। वो परमेश्वर कह रहा है कि आज उस परमेश्वर के सामने आकर आइए हम रिलैक्स हो जाए, आइए हम उस आराम को पाए, आइए हम अपने आप को तरोताज़गी में फिर से उस परमेश्वर के सामने लेकर आए। हम सभी लोग जो है टनल से होकर गुजरते हैं। टनल पता है, बोगदा के अंदर से होकर गुजरते हैं। एवरीबडी नोज, सभी को पता है कि ये टनल के अंदर से जब जाते हैं अंधेरा होता है, लेकिन सबको पता होता है कि इसके टनल के बाद हमारे लिए एक रास्ता है, एक उजियाला है, एक नया रास्ता हमारे लिए आएगा। तो ठीक उसी तरह से प्रिय लोगों, आज हम सभी लोग एक टनल से होकर गुजर रहे हैं। लेट अस नॉट बी वेरी, हम जो है थकेंगे नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि इसके बाद मेरे लिए परमेश्वर एक नया रास्ता बना रहा है। लेट अस बी होपफुल, बी स्टिल एंड नो दैट गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आइए हम इस बात को कहेंगे कि परमेश्वर, हम आपके सामने आकर शांत रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं, रिजुविनेट होना चाहते हैं, क्योंकि आप सब कुछ अपने काबू में लेकर, अपने कंट्रोल में लेकर चलाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को हमारे जीवनों में एक नई ताकत दे, एक नई उमंग दे, एक नए एनर्जी के साथ भरकर चलाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ದಿವಸ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ದಣುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದಣಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ। ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್। ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್। ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ। ಬುಧವಾರದ ದಿವಸ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಧ್ಯವಾರದ್ದು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯನವರನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ। ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆಯ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ। ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಹೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಏನು
ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.